So next chapter is elasticity and Young modulus. सबसे पहले देखेंगे what is elasticity. It is defined as the property, किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है to regain its original dimensions when the deforming force is removed. आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं and when you release it, it returns back to its original length. This is the property which is called elasticity. So different materials have this property to regain original dimensions when the deforming force is removed. But of course, it has a certain limit, and that limit is called elastic limit. अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो देयर विल बी permanent deformation. So elastic limit is the point beyond which, if the force is applied, the wire or the spring does not return back to its original dimensions when the deforming force is removed. So this is how we define elasticity. It is a property of the material to regain its original dimensions when deforming force is removed. It has a certain limit, and that limit is called elastic limit. It's a point beyond which, if the force is applied, if you apply the force beyond a certain value, then the object, whether it's a spring or a wire, it does not return back to original dimensions when the deforming force is removed. So this is how we define elasticity and elastic limit. Next is elastic materials obey a law, and that law is called Hooke's law. It states, within elastic limit, extension of the spring is directly proportional to the applied force. If you apply more force, there will be more extension. If you apply less force, there will be less force. So extension is directly proportional to the applied force. And for equality, it becomes F is equal to KE, where K stands for spring constant. It's a constant of proportionality. K is equal to F over E, spring constant. Newton per meter is its units. Just divide force by extension and you'll get the value of K. Then we have limit of proportionality. The wire obeys Hooke's law to a certain limit. It is called limit of proportionality. That is, if you apply a force beyond the limit of proportionality, the wire or the object does not obey Hooke's law. So that is called the limit of proportionality. So these are four definitions: elasticity, limit of elasticity, proportionality, Hooke's law, and limit of proportionality beyond which extension is not proportional to extension for force. So if we plot a graph of force against extension, you will observe that graph will be a straight line. For example, up to A, the graph is a straight line. A से onward, it starts to curve. So point A is called the limit of proportionality, but L is called the limit of elasticity. अगर हम F against E का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ऑन दी अदर हैंड अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं E अगेंस्ट F का, सेम डायमेंशन, सिर्फ इसमें जो कर्व होगा
वो रिवर्स हो जाएगा। नाउ एक्सटेंशन क्योंकि ज़्यादा इंक्रीज कर रही होती है तो यहाँ पे एक्सटेंशन की जो ग्रेडियंट है वो बढ़ जाता है। इसमें भी ए इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इनको आइडेंटिफाई से करते हैं। ए इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड एल इज द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वहां तक इट इज ओबेइंग हुक्स लॉ, और जहां से वो कर्व करना शुरू करता है और फिर ज्यादा कर्व कर जाता है क्लोज टू ए, वी हैव अ पॉइंट विच इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। वहां तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक रहेगा। अब जो पहला ग्राफ है एफ और अगेंस्ट ई का, अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो इसका ग्रेडियंट स्प्रिंग कांस्टेंट ही होगा फॉर दैट वायर और स्प्रिंग। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेकेंड ग्राफ का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो डेल्टा ई और डेल्टा एफ होगा। दैट विल नॉट बी योर स्प्रिंग कांस्टेंट बल्कि 1/k की वैल्यू निकलेगी वो, और फिर आप रेसिप्रोकल लेके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मतलब पहले ग्राफ से अगर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो जस्ट फाइंड द ग्रेडियंट, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। मगर अगर आप सेकेंड ग्राफ से स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो जब आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये ग्रेडियंट स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि ये ग्रेडियंट आपका 1/k होगा। एंड देन यू हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ योर ग्रेडियंट, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। सम टाइम वो ग्राफ देगा आपको और ग्राफ के रेफरेंस से आपको फिर ये तमाम चीजें जो है वो डिटरमिन करनी पड़ेगी। क्लियर? ग्राफ कॉपी कर लीजिएगा। हमने ये प्रूफ किया है कि E इज प्रोपोर्शनल टू F, F इज के ई एंड K इज इक्वल टू F ओवर E। अब हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमने उसके साथ कोई लोड एक्सटेंड नहीं किया हुआ, तो जो उसकी लेंथ होगी दैट विल बी द ओरिजिनल लेंथ। अब आपने इसके साथ एक लोड एक्सटेंड कर दिया है, लगा दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल इंक्रीज। हाउ टू फाइंड एक्सटेंशन? इस केस में आपने फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ करनी है। द डिफरेंस ऑफ दीज लेंथ्स विल बी योर एक्सटेंशन। एंड सिमिलरली अगर आप और लोड लगाएंगे तो यू विल गेट अ न्यू लेंथ। ज्यादा लोड है और ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगी, तो फिर उसमें भी एक्सटेंशन निकालने का तरीका यही है कि आपने फाइनल लेंथ में से जो लेंथ है विदाउट एनी लोड, आपने वही लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो एक्सटेंशन ऑलवेज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब ये देखिएगा, मैं बगैर लोड की लेंथ निकाली हुई है, फिर 10 न्यूटन से निकाली है, फिर 20 न्यूटन से निकाली है। फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन के साथ मेरे पास एक्सटेंशन आई 0.1 की, 20 न्यूटन के साथ मेरे साथ एक्सटेंशन आ रही है 0.2 की। इसी तरीके से मैंने 30 न्यूटन से भी एक्सटेंशन निकाली है, इट कम्स आउट टू बी 0.3 मीटर्स। यूजिंग दिस डाटा I can calculate the value of extension of spring constant। वो कैसे? अच्छा, जब मैं पॉइंट्स प्लॉट करूंगा E अगेंस्ट F के, F बढ़ाता जा रहा हूं, E बढ़ती जा रही है, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज ओबेइंग हुक्स लॉ। अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं, जीरो फोर्स, जीरो एक्सटेंशन, 10 न्यूटन्स, 0.1 एक्सटेंशन, 20 न्यूटन्स, 0.2 एक्सटेंशन, 30 न्यूटन्स, 0.3 एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज इन लेंथ फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर वो कहता है जी फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट फ्रॉम द ग्राफ, तो आपने इसमें से बेसिकली तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ any of the force and corresponding extension, just divide it and you will get the value spring constant। आप 20 डिवाइड बाय 0.2 कर लें, आप 30 डिवाइड बाय 0.3 कर लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन। ग्रेडियंट नहीं निकाल रहा बिकॉज ग्रेडियंट विल नॉट बी स्प्रिंग कांस्टेंट, इट विल बी 1/k। तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के जरूरी नहीं हम ग्रेडियंट निकालें,
वी कैन फाइंड द वैल्यू डायरेक्टली। जैसे कि यहां पे मैं 30 यूज कर रहा हूं, 30/0.5, एंड इट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 100 न्यूटन्स इन दिस केस। दिस इज माई स्प्रिंग कांस्टेंट। ये वैल्यू आप किसी भी फोर्स और एक्सटेंशन की वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले में कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वो आता है कि ग्रेडियंट से क्या निकलेगा। ग्रेडियंट से के नहीं निकलेगा, ग्रेडियंट से 1/k निकलेगा। तो मुझे यहां पे ग्रेडियंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली अपना F/E वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, फोर्स के साथ देखूंगा कि एक्सटेंशन क्या आ रही है, डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा। फिर वो कहता है अच्छा बताइएगा व्हाट इज द एक्सटेंशन फॉर अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स। ये निकालना है मैंने। अब इस केस में आप नोट कीजिएगा, हमें मालूम है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हम डायरेक्टली F = KE लगाएंगे। फोर्स की वैल्यू 50 है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है। Simplify that and you will straight away get the value of extension। जैसे कि यहां पे ये 0.5 मीटर्स आ रही है, 50/100 इट इज 0.5। तो इस तरह हम डायरेक्टली वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हुक्स लॉ, F = KE। ग्रेडियंट से भी निकाल सकते हैं इफ यू वांट टू, मगर उसकी हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रेड निकालेंगे फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर के आएगा। द सेम कैन बी कैलकुलेटेड बाय straight away calculating the values itself। सो एक ग्राफ है एक्सटेंशन अगेंस्ट फोर्स का। अब मैं आपको एक और ग्राफ दिखा रहा हूं। दिस ग्राफ इज अगेन इज लेंथ ऑफ स्प्रिंग एंड वेट। अब ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। जब वेट 0 हो रहा है तब भी इट हैज सर्टेन वैल्यूज। व्हाट डज दैट एक्सप्लेन, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट। अब देखिएगा जब आप वेट को 0 कर रहे हैं तो यू आर अप्लाइंग नो फोर्स। इफ देर इज नो फोर्स the spring will return back to its original length। इस केस में जो आपका y इंटरसेप्ट है दैट इज योर ओरिजिनल लेंथ, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। मगर एक और चीज नोट करने वाली बात है वो ये है कि यहां पे उन्होंने 0, 50, 100, 150, 200, 250 लिखा हुआ है और यूनिट ग्राम यूज किए हैं। सो इट इज नॉट वेट, वेट तो न्यूटन्स में होता है। तो एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे मैस प्लॉट किया हुआ है और कंफ्यूज करने के लिए उसको वेट लिख दिया है इन ग्राम्स। So they are actually giving you the mass. You have to find the value of weight by using the formula W is equal to mg. That is the question. What is the weight of 150 grams? इसको हम mg लगाएंगे, mass को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, and then you can find the value of the weight of 150 grams. What is the extension for 1.5 newtons? तो यहां पे 5.5 न्यूटन कॉरिस्पॉन्ड्स टू 150 ग्राम्स। वहां से आप देखिएगा इसकी लेंथ क्या बनती है। द लेंथ इज 50 सेंटीमीटर्स। दिस इज योर फाइनल लेंथ। इसमें से आप अगर ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी LF माइनस L0। So the original length of the extension of this for 1.5 newtons is 30 centimeters. So 1.5 Newton causes an extension of 30 centimeters LF minus L0, and using this we can find out the value of spring constant. कैसे? F is equal to KE, K is equal to F over E. Force 1.5 newtons, extension 30 centimeters. Divide कर लें and you get the value of spring constant in this case comes out to be 0.05 Newton per centimeters। जरूरी नहीं कि हम न्यूटन पर मीटर में निकालें, अगर वो कहेगा तो फिर हमें डिस्टेंस को, लेंथ को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे न्यूटन पर सेंटीमीटर में भी आंसर दे सकते हैं इफ इट इज नो रिक्वायरमेंट।
ये हमारे पास तीन किस्म के ग्राफ आते हैं, एक्सटेंशन अगेंस्ट फोर्स, force against extension, and third graph is length of spring against weight. अब एक सिंपल एग्जांपल, हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस पर हमने लोड लगाया हुआ है एल, इन्होंने वेट नहीं कहा, उसको लोड कह दिया है, एल कह दिया है, एंड द एक्सटेंशन इज एक्स। वो कहते हैं बताइएगा व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एल इज इक्वल के एक्स, therefore spring constant will be L over x. Figure number 2. Now we have two springs arranged in series, one after the other. Both are being extended by the load L. पहला स्प्रिंग भी और दूसरा स्प्रिंग भी, दोनों के अंदर जो फोर्स लग रही है वो L ही है, एंड L causes an extension of x. यहां पे एक्सटेंशन को x कहा हुआ है, पहले की एक्सटेंशन भी x है, दूसरे की एक्सटेंशन भी x है। So what is your total extension? It will be 2x. So L causes an extension of 2x. The new spring constant will be L over 2x. That is 1 by 2. हम कांस्टेंट को सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम L ओवर x को, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है पहले वाले स्प्रिंग का, उससे इसको कंपेयर कर सकें। In this case, new spring constant will be k by 2. If we have two springs, extension is double, and the spring constant is reduced to half in series. What will happen if we have three springs? Same logic. Three springs in series. अगर दो स्प्रिंग्स थे, एक्सटेंशन 2x थी, तीन स्प्रिंग लग जाएंगे सीरीज में, एक्सटेंशन 3x हो जाएगी। दो स्प्रिंग्स थे, स्प्रिंग कांस्टेंट k बाय 2 हो गया, तीन स्प्रिंग लग जाएंगे, एक्सटेंशन अगर 3x हो रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट k बाय 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप चार स्प्रिंग, पांच स्प्रिंग, जो भी आएगा, हम इसी प्रॉपर्टी, इसी से हम रिड्यूस कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सटेंशन एंड व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट। केस नंबर 3. नाउ वी हैव टू स्प्रिंग्स इन पैरेलल। अगर पैरेलल है तो ये लोड दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, हाफ लोड ऑन फर्स्ट स्प्रिंग, half load on the second spring. So extension will be reduced to half if the force is reduced to half. So your extension is only half of the arrangement. Spring constant L over x by 2. सिंप्लीफाई करके मैं 2 times L over x लिख सकता हूं उसको। So spring constant is doubled. If extension is reduced to half, spring constant is doubled. What about three springs? Extension x by 3, and spring constant will be 3k with the same principle, half extension 2k, 1 by 3 extension, so it will be 3k. So हम भी इसके इस तरीके से पैरेलल और सीरीज के अंदर एक फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर दो लगे हुए होते हैं तो एक्सटेंशन डबल हो जाती है, और तीन लगे होंगे तो एक्सटेंशन 3 टाइम्स हो जाएगी। जितनी एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता जाएगा। This different types of arrangement will be given to you. आपको उनकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एक्सटेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, लेट अस सी एग्जांपल। वो कह रहे हैं तीन स्प्रिंग लगे हुए हैं, एक्स वाई जेड अरेंजमेंट्स हैं। पहले में दो पैरेलल हैं, दूसरे में दो पैरेलल हैं, फिर उनके साथ सीरीज में दो और पैरेलल हैं, और तीसरे में दो पैरेलल हैं और तीसरा स्प्रिंग जो है उनके साथ सीरीज में है। वो कहते हैं इसमें स्मॉलेस्ट
एक्सटेंशन किसकी होगी और लार्जेस्ट एक्सटेंशन किसकी होगी। तो हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। एक्स की एक्सटेंशन तो ऑलरेडी ऑलरेडी जो है वो तो x/2 होगी। व्हाट अबाउट द सेकेंड, e/2 प्लस e/2, तो टोटल एक्सटेंशन e हो जाएगी। थर्ड, इन दो की e/2 और इसकी e, तो 3e/2। बल्कि मैं लिख देता हूं किस तरह होती है, e/2 प्लस e/2 हो रही है, जस्ट 1 सेकेंड, इक्वल टू e/2 प्लस e/2। स्प्रिंग 2 जो है वो हमारा e/2 प्लस e/2 नेट बन गई आपकी e। थर्ड केस, इट इज e/2 प्लस e इक्वल टू e/3 आ जाती है। इस तरीके से हम इसको अपना इंडिविजुअली जो है वो कैलकुलेट करेंगे, सो दैट वी कैन गिव द एग्जांपल। तो एक्स में e/2 है, एक स्प्रिंग वाई जो है उसमें e बन जाती है, जबकि स्प्रिंग जेड जो है वो 3e/2 बन रहा है। सो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन जो है वो जेड में है, सबसे कम एक्सटेंशन जो है वो एक्स में है। अब मेरे पास तीन स्प्रिंग लगे हुए हैं, एक दो तीन, तीनों पैरेलल है, इनकी एक्सटेंशन एक्स है, वेट डब्ल्यू है। तो वो कहते हैं जी कि इनमें से आपने एक स्प्रिंग को निकाल देना है, मिडिल वाले को, और वेट को भी डबल कर देना है। तो व्हाट विल बी द न्यू एक्सटेंशन। पहली बात तो ये कि अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ एक स्प्रिंग लगा हुआ होता तो फिर उसकी एक्सटेंशन 3x होती, इसलिए तीन स्प्रिंग लगाने से सिर्फ x रह गई है। वेट w है, क्योंकि एक्सटेंशन जो है जितने स्प्रिंग लगे होंगे उतने टाइम कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता और वेट w होता तो उसकी एक्सटेंशन 3x होती। इसी तरीके से अगर हम वेट को डबल कर दें तो एक्सटेंशन विल ऑल्सो बी डबल्ड, 6x एक स्प्रिंग की। तो अगर दो लगा दें तो हाफ रह जाएगी, दैट मीन इट विल बी रिड्यूस टू 3x। इस लॉजिक से हम इसको डिटरमिन करेंगे दैट व्हाट विल बी द न्यू एक्सटेंशन इफ वी हैव ओनली टू स्प्रिंग्स एंड इवन द वेट इज ऑल्सो डबल्ड। तो ये आपकी कैलकुलेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए, कि पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे सिंगल स्प्रिंग के साथ। ये सिंगल स्प्रिंग के साथ आ गया, फिर आप यही एक्सटेंशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे डबल टू डब्ल्यू के साथ, and then you can find the value of extension with 2w and 3 springs in 2w and 2 springs in parallel। ये लॉजिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए आज हम यहाँ तक करते हैं, कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देन विल स्टार्ट विद द वर्कशीट एज वेल।